So, first of all, thank you so much and welcome to Wit Shaper. So, सबसे पहले हम आपके करियर जर्नी की बात करते हैं कि कैसे अपने आपने करियर की शुरुआत की, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया. So, over to you, Parminder. Okay, thanks a lot. Thanks for that introduction, and really thank you to you inviting me on this platform. So I will start my journey from the very first day. जब से I will don't take it too long, but मैं college time से start करूँगा when it all started professionally because college से पहले it was more like सब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं बट कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा बट द मेन जर्नी स्टार्टेड when I entered into a college. So I am born and brought up in Ludhiana, which is not a tier 1 city, obviously, and I just went out of Ludhiana for my further studies for doing BTech. So I have studied from University of Petroleum Energy Studies, and I started my journey, professional journey of education in 2012, and I have chosen BTech Computer Science. And to be very honest, it was totally accidental. So there was no thought process behind कि हाँ computer science ही लेनी है या कुछ और नहीं. I was very much curious about taking mechatronics, which is mechanical plus electronics. तो जब I was in a counseling of this particular university, तो तब मैंने mechatronics choose किया and I for a backup purpose मैंने computer science को just adopt किया वहाँ पे. And the results came by luck. मेरा computer science का waiting list clear हो गया. So to be very honest, ये पूरा accidentally it was an accidental choice कि computer science ही करना है. But the moment I started with it, जैसे जैसे the first year started, then second, third, fourth, with the time वो interest बढ़ने लगा. So it was never like कि ये चीज़ accidentally ली गई है because there was always in my mind कि I have to be a problem solver. I don't want to be another engineer in the field. चाहे वो mechatronics हो चाहे वो computer science हो for that matter. तो I really want to be a problem solver. और वो एक चीज़ मेरे मतलब I think that is there when I was in a 8th class. So I was trying to solve lot of problems जो मेरे around में है. Like I still remember we were building our house. So there was a requirement of bricks. तो जब वो ब्रिक्स वाले दे जस्ट offload their bricks outside the house, so there is no method कि आप count कर पाओ उनको because they put the bricks in a particular pattern. And I still remember I was in a 8th class and I just used all my brains there to figure out how I can calculate कि इसमें कितनी bricks unload हुई हैं. So that is how the journey of education in my life started in 2012. So as I told you, it's more accidental. So but it was I wanted to be a problem solver, not in 2012 but before that also हमेशा एक माइंड में रहता था कि आई डोंट वांट टू बी अनदर इंजीनियर, चाहे वो एक मैकेट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो. देयर वाज अ थॉट कि नहीं कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है. तो वो थॉट के साथ आई स्टार्टेड माय जर्नी. सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर सो नो वन विल बी सीरियस, दैट सीरियस एटलीस्ट. तो मैं भी उन्हीं में से एक था कि आई जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी और बस कुछ करना है, अलग करना है, बट कैसे होगा क्या होगा नो आइडिया. एंड ऑब्वियसली का हो दैट्स अ एकदम डिफरेंट सेलेक्ट की जर्नी. नेट बार बार तब गश्ता तक पे टिल आई थिंक टिल 11th आई वाज एट माय होम. घर में घर वालों के साथ रहना इज अ डिफरेंट जर्नी एंड हेलो. कमिंग टू दी हॉस्टल एंड लिविंग दैट लाइफ, गेटिंग दैट एक्सपोजर इज अ डिफरेंट जर्नी. एंड आई रियली थिंक वो जो जर्नी थी 4 साल की जिसमें आई वाज नॉट विद माय पेरेंट्स बट विद माय कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, सो दैट गेव मी अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टुगेदर. वहाँ पे जो मैंने लाइफ स्टाइल, द लिविंग स्किल्स, ऑल दोज थिंग्स वट एवर आई हैव लर्न वॉज समथिंग डिफरेंट जो शायद अगर मैं अपने पंजाब में कोचिंग कंटिन्यू करता या लुधियाना में करता तो आई वुड नॉट हैव अचीव दैट. So obviously the first year went off मजाक मस्ती मजाक में निकला, and from the second year I just became little bit serious कि नहीं already we have lost 1/4 or 25% of the total time, so we need to pull it up. अब थोड़ा मतलब have to be serious, have to start learning the new things, have to be more serious about computer science. So as I told कि there is a कीड़ा in that mind कि नहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है, कुछ आई हैव टू बी दैट प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अनदर computer science engineer. So in the second year I started picking some of the languages, the computer science languages. PHP was one of them. So उन चीज़ों पे I started getting some freelancing projects from the outside. So it's just like a small business model जो मैंने खुद से स्टार्ट किया अपने कॉलेज में कि ठीक है अभी सब्जेक्ट सीख तो लिया है बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें.
यू नो स्कूल में, कॉलेज में जितने भी एग्जाम्स हैं, दे विल गिव यू एक्सपोजर बट नॉट एट दैट लेवल जो इंडस्ट्री तुमसे चाहती है. तो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स मूव आउट ऑफ द कॉलेज एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, और देखते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल सकता है. उनको एक इंजीनियर चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो कैन वी कम ऑन दैट कॉमन पेज एंड कैन वी टेक दैट प्रोजेक्ट. तो स्लोली स्लोली वो स्टार्ट किया. ऑब्वियसली लॉट ऑफ मीटिंग्स जो स्टार्टिंग में करी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, दैट गॉट फेल्ड लाइक एनीथिंग, बिकॉज सबको ये लगता था अच्छा सेकेंड ईयर में तो है, आता ही क्या होगा, अभी तो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, शायद अभी लैंग्वेज सिर्फ सीखी है, बट ये हमें यूज करना चाहता है टू गेट दैट एक्सपोजर. सो वो सारे थॉट्स थे जो मैंने सुने हैं लोगों से एज अ फीडबैक कि वो क्यों ये प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते. सो दैट इज वेयर आई थॉट कि ठीक है, लेट मी फर्स्ट बिल्ड माई पोर्टफोलियो नाउ. ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए था, पहले हमें पोर्टफोलियो बना के किसी को रीच आउट करना चाहिए था, बट एज आई वॉज नॉट दैट मेच्योर, तो मैंने एक उल्टी डायरेक्शन में ड्राइव लिया था. बट नाउ जब वो चीज़ समझ आ गई कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन, ऐसे मूव करेंगे तो कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, तो आई थॉट कि लेट्स बिल्ड अ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आई डोंट वांट टू पिक अ प्रोजेक्ट जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में पिक कर रहे थे कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है लेट्स पिक दैट. व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि क्या ऐसा कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग माय स्किल्स. अब वो प्रोजेक्ट अगर मैं कर लूंगा तो आई विल बी रियली कॉन्फिडेंट बाय गेटिंग अ रियल फीडबैक्स फ्रॉम माय टीचर कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी और तुमने ऐसा सॉल्व किया, बट तुम ऐसा कर सकते थे. So what I did is हमारे कॉलेज में, मतलब it was a very big university. There were a lot of computer science branches itself. Like I was studying specialization of computer science with cloud computing. So like this, there were 9 more branches inside computer science itself. So it was a huge campus. तो हो क्या रहा था वहाँ पे, जो पूरे कैंपस का टाइम टेबल था that was getting created manually. तो देयर वॉज अ स्मॉल टीम जिनको पता था अच्छा हमारे पास ये क्लासेस हैं, ये फैकल्टीज हैं और ये टीचर्स हैं, और उनको वो मैनुअली मैप करते थे. तो बहुत बार ऐसा होता था, हमें लगता था कि यार हमें ये टीचर मिलना चाहिए था, बट उनकी मैनुअल अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमें कोई और टीचर मिल गया विच वॉज नॉट सपोज टू बी द राइट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे लिए. मे बी ये प्रॉब्लम कोई माने या ना माने, बट मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी. देन आई थॉट लेट आई हैव लर्न PHP, मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मेरे पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पे हो, बट एटलीस्ट आई नो समथिंग. तो लेट मी पुट दिस 2 पॉइंट टुगेदर एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो तब मैंने एक टाइम टेबल क्रिएशन स्क्रिप्ट बनाया. The timetables creation script banaya. What it was doing is it was mapping all the classes requirement and the teachers कि ये teacher will should be given to this particular class, and the complete thing was 100% automated. किसी भी type की कोई भी manual intervention was not required. So that was my first project, and when I showed it to some of my teachers, I got a lot of feedbacks कि इसमें ऐसा गलत है, वो गलत है, but that is the first job which I picked for myself, जब मुझे लगा कि अच्छा ये मैं सोच रहा था और ये गलत था. अदरवाइज इफ आई वुड हैव गॉन आउट और मुझे कोई क्लाइंट मिल जाता एंड देन आई वुड हैव डन दैट मिस्टेक, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता. तो आई थिंक दिस इज दैट फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माई जर्नी, जहां मुझे समझ आया कि फीडबैक लेते कैसे हैं. तो जो मेरी अप्रोच थी पहले कि चलो कॉलेज से बाहर जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, वी विल अर्न ऑल्सो, विल गेट द एक्सपोजर, वो बहुत ही गलत थी. बट तब इतना समझ नहीं थी. तो द मोमेंट आई टुक द राइट टर्न, जब वो यू टर्न लिया और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू करे, तब मुझे समझ आया कि एक प्रोजेक्ट हमें क्या क्या सिखा सकता है एंड हाउ टू गेट द फीडबैक. दिस इज व्हाट आई लर्न इन दैट प्रोसेस कि अगर कोई फीडबैक देता है तो हाउ यू विल काउंटर दैट कि नहीं, जो आप बोल रहे हो ये मैंने सोचा तो था, बट इसलिए मैंने नहीं करा, देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ इंटेंट बिहाइंड इट. एंड वट एवर फीडबैक यू आर गिविंग, अच्छा ये मैंने क्यों नहीं सोचा, दैट इज अ पॉइंट फॉर मी कि मुझे वापस जाके सोचना है कि यू आर ट्राइंग टू सिंग वन थिंग कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मुझे बनना है, बट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट दिस बेसिक थिंग्स. So that is how my second year started, and that is how it went. I still remember with one of my friend, we took a project from college, a paid project from college, to develop their website for R&D. So that was another turning point where we learned how to code for our project. So obviously ये skills mandatory नहीं थी, but each and every skill, each and every project was giving us a confidence, especially me कि हाँ हमें बात करना आता है क्लाइंट से, हमें पता है नेगोशिएट कैसे करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी आती है, हमें टेक्नोलॉजी डिलीवर करनी आती है. सो इट्स नॉट कि मैं एक छोटी सी क्लासरूम में बैठ के मैंने PHP लिखनी सीख लिया एंड आई वांट टू बी अ नेक्स्ट गुड प्रोग्रामर. ऐसी जर्नी नहीं होती. करेक्ट, देयर आर अप एंड डाउन्स. तो अंटिल वी ट्राई तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमें क्या नहीं आता. So that is how my second year went off. So I just got in love with PHP for some reason. That was also a wrong thing because मैं एक ही language पे stick हो गया. I still remember कि fourth semester में they were teaching us Java,
एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे एक लैंग्वेज आती है, बिकॉज मैंने कईयों से ये सुना था कि एक लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, बट किसी ने ये नहीं बताया जो तुम वो एक लैंग्वेज चूज करोगे वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से चूज करना, अपने प्यार के हिसाब से नहीं। तो आई गॉट इन टू लव विद द लैंग्वेज, बट दैट लैंग्वेज हैज़ अ डिमांड, बट क्या उसके अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसकी डिमांड इससे ज़्यादा है? आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। मुझे जावा पढ़ाई जा रही थी, मैं बस उसको मार्क्स के लिए पढ़ रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी जो पहली जॉब थी वो जावा में थी। So that is how things started getting difficult for me. So this is how my third year started, and luckily the third year mein the first company came for internship was Zebia in Bangalore. So I that was the first company जो campus पे आके hiring करते हैं internship की, और by God grace मेरा हो जाता है। And then I came to Bangalore for internship, और यहाँ का exposure was totally different. That was a time जब मुझे समझ आया कि इंडस्ट्री होती क्या है। अभी तक तो आई लर्न लॉट ऑफ स्टफ इन कंप्यूटर साइंस, सीखा करा, कॉलेज को अपना क्लाइंट बना लिया, बाहर के क्लाइंट्स लिए, फ्रीलांसिंग कंपनी रन करी, वो सब सही था। बट जब यहाँ पे आए तो पता लगा एक कंपनी होती क्या है, हाउ कंपनी वर्क, वो टीम वर्क को कहते क्या है। बहुत कॉलेज में टर्म यूज किया था, जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे माइनर मेजर की, वी आर वर्किंग एज अ टीम, बट वो टीम वर्क और जो कॉर्पोरेट का टीम वर्क इज टोटली डिफरेंट। कॉर्पोरेट में देयर इज अ लीड हु कैन टेल यू, हु कैन गाइड यू। कॉलेज में इट्स मोर लाइक यू आर 4 पीपल, सबका नॉलेज 19-20 है, सबको बराबर आता है, एंड देयर इज नो वन टू लीड यू। देयर आर टीचर्स बट दे आर नॉट ऑलवेज विद यू, बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज बाय यू, एंड यू हैव टू डू इट एट ऑल, करेक्ट। तो दैट इज हाउ माई थर्ड ईयर, मतलब आई वुड से कमिंग टू बैंगलोर इन थर्ड ईयर वॉज अ टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे बहुत मेच्योर बनाया, in terms of financial things, in terms of personal thing, and in terms of professional. तो यहाँ पे आई स्टार्टेड गोइंग टू लॉट ऑफ मीटअप्स। यहाँ पे बैंगलोर में देर आर लॉट ऑफ वीकेंड्स वेयर यू कैन गो टू लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल मीट विद सेम इंटरेस्ट। लेट सपोज मेरा IoT में इंटरेस्ट है, तो देर आर लॉट ऑफ मीटअप्स ऑफ IoT। तो वहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, पीपल कम फ्रॉम कंपनीज लाइक फेसबुक, डेल, their experts will come, they will talk about what they are doing, and you will learn from them, and you will get a chance to have a coffee or tea with them. तो वो जो हर इवेंट के लास्ट के 20 मिनट्स होते हैं, दे हैव प्लेस्ड इट फॉर नेटवर्किंग, जहाँ पे आप जाके अपने सारे जितने भी लोग वहाँ पे मीटअप ज्वाइन करने आए हैं, उनके साथ जाके यू कैन हैव अ नेटवर्क। सो आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट 4 जॉब्स ऑफर फ्रॉम दोज मीटअप्स ओनली, बिकॉज आई गॉट एक्सपोजर कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना और क्यों नहीं बोलना है। ये एक साल में जो मैंने सीखा, आई स्टार्टेड अप्लाइंग देयर, और उससे माय नेटवर्क स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड कि अच्छा अभी इसका थर्ड ईयर खत्म हो गया, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड देयर वर अपॉर्चुनिटीज वेयर आई गॉट इंटरव्यूड इन दोज मीटअप्स इटसेल्फ। So when I came back to my college, I completed my internship. I had a different exposure from the city like Bangalore, and I had job offers, that to 4 job offers from very small startups. And I never accepted any of them because I wanted to see where I stand when a company like Dell comes in a campus. And at that moment in 2016, the Dell was the only big company who used to come to our campus, and the very first company itself was Dell. And by God grace, I got placed there. The very first hit, जिसको बोलते कि अच्छा तुक्का लग गया, and I got placed in Dell, and I was really relaxed after that. I still remember मेरे पास पूरा एक साल पड़ा था, and at day zero means before even your placement session starts, your first company will arise at day zero. तो अभी आपका सेशन शुरू भी नहीं हुआ और आप प्लेस हो गए हो, तो यू हैव कंप्लीट 1 ईयर, जा तो तुम उसको वेस्ट करो और यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ वेरी मीनिंगफुल थिंग। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि एक MNC में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए अदर देन टेक्निकल स्किल्स। बिकॉज जब व्हेन माय इंटरव्यूड हैपेंड फॉर डेल, तो देयर वाज नो सच क्लैरिटी कि मुझे किस प्रोजेक्ट में डालेंगे। सो दे वर नॉट एबल टू टेल मी कि अच्छा आप जावा पे काम करोगे या आप किस पे काम करोगे। दे वर लाइक कि जब यू जस्ट स्टार्ट ब्रशिंग अप व्हाटएवर यू हैव लर्नड, और जब आप ज्वाइन करोगे दैट टाइम क्या रिक्वायरमेंट किस प्रोडक्ट में होगी, अकॉर्डिंगली विल फिट यू देयर। तो आई वाज क्लूलेस कि मुझे क्या पढ़ना है। देन आई केम अक्रॉस अ स्किल व्हिच इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। ये ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, प्रोजेक्ट कुछ भी हो, बोलना कैसे है, कैसे बिहेव करना है, टीम वर्क कैसे करते हैं, ये चीज़ें तो हर फील्ड में चाहिए होंगी। सो मैंने अपना वो एक साल उन चीज़ों पे किया, और मैंने बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया। मतलब बहुत सारी मूवीज देखी, बहुत सारी, बिकॉज आई नो कि हाँ मैं टेंशन फ्री हूँ। जिस चीज़ के लिए हमने बीटेक करी थी, वो फोर्थ ईयर के फर्स्ट डे पे आपको अचीव हो जाती है, एंड यू हैव कंप्लीट फोर्थ ईयर पेंडिंग विद यू। तो दैट वाज लाइक वो आई वुड से वो एक टाइम था कि जिसमें मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रहा था और
पढ़ कम रहा था, बट स्टिल आई हैड अ टारगेट कि नहीं, एटलीस्ट जब भी कॉलेज खत्म हो तो आई शुड नो दो सॉफ्ट स्किल्स वेरी थॉरली कि हाँ इन चीज़ों में ऐसे बिहेव करते हैं, टीम वर्क ऐसे होता है. तो दैट इज हाउ द 4 years of education was. And then Dell came into picture. Then I joined this company, came back to Bangalore again for this for the second time. And that was again a turning point, because अभी तक जो सुना था बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना होता कैसे है, अ पर्सन फ्रॉम अ टायर वन सिटी, सो नॉट अ टायर वन सिटी, वो जाके टायर वन सिटी की इतनी बड़ी एमएनसी में काम करने की अपॉर्चुनिटी, दैट वाज रियली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. सो वहाँ पे बहुत कुछ समझ आया, एंड आई हैड दैट कीड़ा, आई वुड से दैट इन हिंदी, वो एक कीड़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग का. वो कॉलेज से स्टार्ट हो गया था. आई जस्ट मिस्ड वन थिंग. इवन कॉलेज में भी आई यूज्ड टू राइट ईमेल्स टू कंपनीज लाइक फेसबुक, एप्पल, कि आपका प्रोडक्ट मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे आपके प्रोडक्ट में ना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये बहुत ही मतलब इट माइट साउंड वेरी किडिश कि अच्छा ये क्या जरूरत थी ऐसा करने की, राइट, एंड हु आर यू टू टेल देम, या फिर वो सोचेंगे अच्छा कौन है परमिंदर, लाइक जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट इन 3rd year हमें बता रहा है. तो आई नो ये सब थॉट्स मेरे मन में भी थे कि मैं क्यों लिखूं, बट मुझे फिर भी कन्वे करना था. आई वॉज यूजिंग एप्पल फ्रॉम लास्ट 4 years एट दैट मोमेंट, और मुझे इतनी गलतियां उसमें नजर आती थी. गलतियां नहीं बोलूंगा, आई वुड से द रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द कस्टमर्स लाइक मी, जो एक प्रोडक्ट 4 साल से यूज कर रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीजें भी दिखती हैं, यार ऐसा क्यों नहीं है, मैं इससे पहले ये फोन यूज करता था उसमें तो इजिली हो जाता था. तो वो चीजें आई यूज टू राइट ईमेल्स टू दोज बिग कंपनीज एट देयर सपोर्ट ईमेल आईडीज. लकीली और अनलकीली मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आया किसी चीज का, एंड आई वाज नॉट आई नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट. मुझे ये नहीं था कि अच्छा यार वो क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे. ऑब्वियसली आई एम नॉट एनीवन जिनकी ईमेल्स को सीरियसली लिया जाए, बट स्टिल मुझे एक था कि हाँ मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी आती है. So that is what gave me a confidence कि I know how to figure out a problem. That too in a product like Apple or Google. Maybe जो problems मैं figure out कर रहा था, those might be only for me और मेरे जैसे customers के लिए. बट स्टिल एक कॉलेज का 3rd year स्टूडेंट अगर वो भी फिगर आउट कर पा रहा था, वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी. मे बी वो बड़ी अचीवमेंट ना हो, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. तो द मोमेंट आई लैंडेड टू डेल, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज आई वांट टू एक्सप्लोर दैट स्किल. कि हाँ, जब वो प्रेशर नहीं था कैंपस में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, देयर वाज नो डेडलाइंस, नथिंग, तब तो मेरे थॉट्स बहुत सही चल रहे थे. क्या अब व्हेन आई एम गोइंग टू जॉइन अ टीम जो जावा में काम करती है और मुझे जावा का जे भी नहीं आता, आई वाज इन दैट सिचुएशन. और फिर भी आई रियली वांटेड टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि द मेन जॉब इज कि हाँ जावा पे काम करो, प्रोडक्ट डिलीवर करो, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए. ये इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सेकेंडरी थिंग. That too you are a fresher, you just came out of college and you don't know anything about industry. तो आई रियली वांट कि नहीं ठीक है, हम फ्रेशर हैं, कोई बात नहीं, विल गिव इट अ ट्राई. सो दैट इज हाउ माई जर्नी ऑफ इनोवेटर स्टार्टेड. So I still remember it was just 1 week in the job, and I went to someone who is really a big name in innovation, and मुझे मैंने उनको बोला कि I need your mentorship. एंड द रीजन ऑफ मेंटरशिप इज इनोवेशन. मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉब्लम ढूंढ पाता हूँ, हाँ सोल्यूशन नहीं आता, बिकॉज अभी उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है और उतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो चीज़ें पढ़नी कैसे हैं, लिखनी कैसे हैं, कोड कैसे लिखना है एंटरप्राइज लेवल पे, सब नहीं आता. तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, बट आई स्टिल वांट टू गिव इट अ ट्राई. तो दी वेरी वेरी लॉजिकल आंसर ही गेव मी इज कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम. स्पेंड 4-5 years इन इंडस्ट्री, देखो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे एक टेक्नोलॉजी को पिक किया जाता है. एंड ही वॉज गिविंग मी वेरी गुड पॉइंटर्स ऑन वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी. और देन ही टोल्ड कि एक बार 4-5 साल काम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा चीज़ें होती क्या हैं, और फिर आता है इनोवेशन. बट आई एज आई टोल्ड यू कि वो एक कीड़ा था कि नहीं, इनोवेशन तो करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है. तो आई थॉट कि ठीक है, वट एवर ही सेइंग मेकिंग सेंस, वो पूरे लॉजिकली उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि मुझे क्यों ये नहीं करना चाहिए. और मेरे पास क्या आंसर था, मुझे ये क्यों करना है, बिकॉज ये जिद है. तो देयर वाज नो लॉजिक बिहाइंड इट, बस करना है तो करना वाला सीन जो हम बोलते हैं यूजली, वैसा था. एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट अ हिंदी मूवी कि हाँ मैंने सोचा और हो गया. तो बट आई स्टिल वांट कि नहीं ठीक है, विल गिव इट अ ट्राई. एंड आई स्टिल रिमेंबर, सो देयर वाज 2 wars इन फ्रंट ऑफ मी. ये जंग लड़ी जा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पहली जंग वो थी कि हाँ जावा पढ़ के प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं, एंड द सेकंड पार्ट वाज कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है, टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, मुझे वो भी अचीव करना है. एंड नो वन विल बिलीव इट कि ऐसा मैं कुछ करना चाहता था, बिकॉज अभी जब मैं बेसिक स्किल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हाउ आई कैन बी अ इनोवेटर.
इनोवेटर, जब भी हम सोचते हैं पेटेंट्स, इन्वेंशंस, इनोवेशन, तो हमारे माइंड में वो इमेज आती है कि अच्छा यार, इसको तो बहुत कुछ आता होगा, इसको तो टेक्नोलॉजी का सब ए टू लेके जी तक सब आता होगा, ही नोज एवरीथिंग, क्या चल रहा है दुनिया में। सिटिंग इन वन कंपनी ही माइट बी नोइंग कि नेक्स्ट 100 कंपनीज में 100 ईयर्स में क्या होने वाला है। दैट इज हाउ अ पर्सन विल इनोवेट। मुझे भी लगता था ऐसा कि ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड डिसाइडेड कि नहीं, ये करना है, तो आई नो कि मैं फेल तो होऊंगा, और मैक्सिमम क्या होगा, आई विल फेल एंड कम आउट ऑफ दिस, वट एवर दैट पर्सन जिनको मैंने मेंटरशिप के लिए रिक्वेस्ट करी, आई नो कि वो सही होने वाले हैं। एंड 99% प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं के थॉट सही हैं और मैं गलत हूँ। बट जस्ट फॉर दैट 1% आई थॉट कि नहीं, ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट टुक मी 1.5 year टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ कि नहीं, वो 1% कैन बी अ ह्यूज। तो मुझे 1.5 year लग गया to just get my first successful innovation. And I still remember I went through 100 ideas of my own जो मुझे लगता था बहुत ग्रेट है, एंड आउट ऑफ दैट 100 आई जस्ट फाइल्ड 16 आइडियाज, 16 आइडियाज 100 में से मैंने फाइल करे, और वो सारे के सारे क्रैश्ड like anything. I got so bad feedbacks on them because I am trying to propose something जो इंडस्ट्री में 5 साल से होता रहा है। वो मेरे लिए नया था बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं थी ना। मुझे लगा अच्छा मैंने तो कुछ नेक्स्ट बिग थिंग फिगर आउट कर ली है। द मोमेंट आई वेंट फॉर अ फीडबैक एंड दे सेड लाइक ये 5-6 साल पुराना है, हमारे 100 प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ इनोवेशन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीयूज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट मेरे लिए इनोवेशन था बिकॉज मैंने तो ये टेक्नोलॉजी सुनी भी नहीं थी। तो दैट इज व्हाट ही वाज राइट। ही वाज मेंशनिंग कि पहले सीखो चीजों को, देखो होता क्या है। बट वही इमेच्योर माइंड था, जिद्दी था कि नहीं ठीक है, ही इज रॉन्ग एंड आई एम राइट वाला सीन था, जो नहीं होना चाहिए था। बट स्टिल आई एम ग्लैड कि मैंने वो पाथ लिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल हैव सेड नो टू मी फॉर मेंटरशिप बिकॉज ये राइट पाथ नहीं है। एंड इवन आई ऑल्सो ट्रस्ट कि ये राइट पाथ नहीं है, आज भी मानता हूँ, पहले भी मानता था। एंड आफ्टर आफ्टर गेटिंग 16 फेलियर्स बैक टू बैक, जब मुझे लग रहा था कि जो 16 आइडियाज मैंने फाइल किए हैं ना, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ये वो बिग थिंग है कि जो आने वाले 100 मिलियन पीपल की लाइफ चेंज कर देगी। दोस टाइप ऑफ इमेच्योर थॉट्स आई वाज हैविंग। द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक, तब मुझे समझ आया कि कुछ तो गलत है। सिर्फ पैशन होना, सिर्फ वो जिद्दीपन होना विल नॉट टेक यू देयर। राइट। So you need to start learning. That is where my journey of learning as an innovator started. तो उसके बाद से आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग एंड लर्निंग। सो एज आई टोल्ड यू, देयर वर 2 wars इन फ्रंट ऑफ मी। एक था डेली जॉब करना, जिसमें आई हैव टू लर्न जावा, आई हैव टू बी वेरी गुड इन जावा, देन ओनली आई विल बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ कंपनी लाइक डेल। वी आर नॉट वर्किंग एट एकेडमिक लेवल कि हाँ कुछ भी सीखा और कुछ भी कर दिया, बना रहे। दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स जो 100 मिलियन पीपल एक ही टाइम पे यूज करने वाले। सो देयर विल बी सिक्योरिटी इश्यूज, देयर विल बी परफॉर्मेंस इश्यूज, बहुत कुछ होने वाला है। एंड आई डोंट नो द लैंग्वेज, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, लिटरली ये पहाड़ है। अभी तो मुझे वो बेसिक भी नहीं आते थे। सो इट स्टार्टेड, मतलब वो था कि नहीं ठीक है, आई विल स्टार्ट एज अ इनोवेटर, जो मुझे करना है वो भी करना है, और जो डेल मेरे से चाहती है मुझे वो भी अच्छे से करना है। आई डोंट वांट टू हियर दिस थिंग फ्रॉम एनीवन कि जो तुम खुद करना चाहते थे वो तो तुमने बहुत अच्छा किया, बट जिस चीज के लिए हायर करा गया था वहां तुम फ्लॉप हो गए। राइट। तो आई वॉज रियली वेरी सीरियस अबाउट दैट कि ठीक है, मेरा इनोवेशन जर्नी सफर हो जाए चलेगा, बट मेरा डेली जॉब जिसके लिए मुझे हायर किया गया है, मेरे पे ट्रस्ट करके कि ठीक है ये डिलीवर कर सकता है प्रोडक्ट, दैट शुड नॉट सफर। प्रायोरिटीज। Yeah, and now it has been 6 years. Luckily have more than 150 patent applications, 35 granted patents. Journey is still going on, learning every day. ओके। सो अगर आपको अपनी जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डिस्क्राइब इट? एक लाइन में। एक लाइन में या दो लाइन में, लाइक इन व्हाटएवर वे, बट हाउ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब योर जर्नी? So, if I have to convey this in 2 lines, I would say कि जर्नी की स्पीड मैंने अपने हिसाब से मॉनिटर करी है। आई रियली वांटेड कि मैं स्टार्ट करूं विद द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ माय कॉर्पोरेट लाइफ कि मुझे करना है इनोवेशन। तो द गुड पार्ट वाज मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा था, चाहे वो मेरी जिद थी, चाहे वो इलॉजिकल था, जो भी था, आई वाज एबल टू कंट्रोल इट। तो वो जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। द सेकंड गुड पार्ट वाज जर्नी वाज कि अगर फेलियर्स आ भी रहे थे तो मुझे पता था, मुझे डे वन पे पता था 99% प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू फेल इन दिस इनोवेशन जर्नी। बट मुझे अगर वो 99 से मैं अगर 98 पे ले आया ना, तो मेरे लिए वही बहुत सक्सेस हो जाता था कि एटलीस्ट मैंने 1% ड्रॉप करवा लिया अपने फेलियर प्रोबेबिलिटी से। तो कभी एक दिन ऐसा भी आएगा व्हेन वी विल हैव 50-50 प्रोबेबिलिटी। और दिस इज हाउ माय जर्नी हैव बीन। मतलब मैंने वो पूरी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल्स को डिवाइड करके, एंड आई वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं ठीक है, 99
परसेंट फेलियर से 98 पे आए हैं, आज 50 पे हैं, कल को कभी ऐसा होगा कि हम 80% सक्सेस रेट पे भी बैठे होंगे। तो दिस इज हाउ द जर्नी हैव बिन। बस वो छोटा सा कीड़ा जिसने स्टार्ट करा है, एंड नाउ वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड टू द न्यू हाइट्स। ओके, और वन मैसेज फॉर द youth or generation or any professional who wants to enter in this field? I think only two things for this particular field. Just be mad, be mad to learn new things. Don't think, my company is not looking for this particular skill, then I will not learn it. Obviously, that is also important what your company is looking for. But can you figure out 1 hour each day and learn something that will take you to the new heights? So there is a book, that says कि जो skills आपको यहाँ तक लेके आई है ना, वो skills आपको next level पे नहीं लेके जा सकती. So the moment you start figuring out those skill set, that can be soft skills, technical skills, or anything. तो the only one advice is keep looking for those opportunities and skill. Don't think कि हाँ मैं यहाँ आया हूँ ऑफिस में काम करूंगा घर चले जाऊंगा, ये लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, हाइक मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सब हो रहा है. बट आर यू सेटिस्फाइड? इफ यू आर सेटिस्फाइड इन दिस जर्नी तो इट्स ऑसम. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करना ही नहीं चाहिए. देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस एंड दे आर रियली हैप्पी. But if you are getting, a good kick, which I really recently learned, a good kick from this journey, then it's great. But अगर आपको लगता है कि नहीं, I am a person who really wants to jump to new things every now and then, but ये भी एक गलत चीज़ है. So I always can say myself कि I'm jack of all and maybe king of one, but not king of everything, or maybe not king of lot of things. So that is also a bad part. But you should know how you should play with your bad part. So मुझे आज पता है कि I know something about lot of things, lot of domains. Okay, so I know how to play with it. I know how to take it forward. How these little knowledge of every domain can help me to take myself to a next designation. So if you know your flaws, if you know your strong points, you start using it and make your journey more stronger in that case. I think. Perfect. ओके, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको थोड़ा बैक पीछे जाना है, अगर आपको कुछ मैं चेंज करने के लिए बोलूँ कि भाई आपको ये चेंज करना है, सो दैट कि जो मतलब आपने काफ़ी टाइम लगाया, राइट? जैसे आपने बोला कि आपने मतलब आपके पास कुछ, जैसे आज की जनरेशन की बात करें तो दे आर लाइक क्लियर कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है. सो दे विल बी लाइक यू नो रीच वेयर यू आर टुडे इन अर्ली स्टेज. तो अगर आपको पीछे जाना है तो आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप चाहते हो कि मैं इसको इतना अगर थोड़ा इसमें चेंजेस कर दूँ तो शायद मैं आज जहाँ हूँ मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच जाता. The only one thing which I regret is कि मुझे गोल सेटिंग नहीं करनी आती थी. मेरे लिए गोल था कंपनी में प्लेसमेंट लेना. आज मुझे लगता है वो चीज़ बहुत गलत थी. The moment I got placed, I was free in my head कि अच्छा अब तो हो गया चीफ, अब 1 साल है, इसको खराब करते हैं अच्छे से. That is what my attitude was. कि अच्छा 4th ईयर पूरा पड़ा है, बस ठीक है, एग्जाम क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स ले लेंगे, जितने आए ठीक है, पास होंगे एंड वी आर गुड. तो आई स्टार्टेड वेस्टिंग माई टाइम लाइक एनीथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि वो एंजॉय करना बुरी बात है, बट मेरा गोल सेट ही गलत हुआ था. मेरा गोल था कंपनी में प्लेसमेंट लेना. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके बाद के हडल्स का क्या आएगा. मतलब यू हैव बीन इन city like Ludhiana. From there you went to Dehradun. Now you're going to Bangalore, and in the same company there will be people from IIT, triple IIT. How you're going to compete with them? And I have no idea कि उन्होंने क्या सीख के आए हैं. They might be 1,000 times better than me. तो I was not even aware of कि क्या challenges आने वाले हैं. तो मुझे ऐसा लगता है वो गोल सेट ही बहुत गलत हुआ था. अगर मुझे मतलब इफ आई वुड बी दैट मेच्योर तो आई वुड हैव टेकन अ गोल कि मैं बेटर इंजीनियर कैसे बनूंगा, ना कि मैं बेटर जॉब कैसे लूंगा. तो वो एक चीज़ ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी टाइम मिला तो आई विल टेल टू माय यंगर सेल्फ कि नहीं यार, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस. एंड वंस यू आर अ बेटर इंजीनियर तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन सी कंपनी है, बिकॉज यू नो कि यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग. तो वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आज छोटी कंपनी तो कल बड़ी कंपनी में भी प्लेसमेंट हो सकता है. तो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन ओवर द जर्नी.